یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہتیں صرف تخت اور تاج سے نہیں بلکہ خوف، خاموشی اور لوگوں کی سانسوں پر قائم رہتی تھی۔ شاہ نور الدین کی سلطنت نقشوں پر بڑی نظر آتی تھی، مگر حقیقت میں یہ سلطنت دلوں پر بھاری تھی۔ بازار آباد تھے، خزانے بھرے تھے، مگر ہر دروازے کے پیچھے ایک ڈرا ہوا دل دھڑکتا تھا۔ بادشاہ نور الدین ظاہری طور پر مضبوط تھا، لمبا قد، چوڑی چھاتی، آنکھوں میں سختی۔ لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر رات محل کی سب سے اونچی چھت پر وہ اکیلا بیٹھ کر شہر کی طرف دیکھتا اور اپنے ہی دل سے لڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا طاقت صرف تاج نہیں، طاقت خوف پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ سلطنت کے سائے میں 7 زندگیاں۔ اسی سلطنت کے ایک ایسے حصے میں جہاں نہ محل کی روشنی پہنچتی تھی اور نہ قانون کی آواز، 7 زندگیاں ایک دوسرے سے جاڑ رہی تھیں۔ یہ 7 لوگ دوست نہیں تھے، یہ مجبوری کی شراکت تھی۔ پہلا چور سلیم، وہ بچپن مگر قسمت نے اس کی آنکھوں کے بدلے سے اندھیرے کو پڑھنے کی طاقت دے دی تھی۔ وہ سایوں کی حرکت سے پہچان لیتا تھا کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ دوسرا چور نعیم، نعیم کے ہاتھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ وہ کہتا تھا تالا بھی آخر لوہے کا دل رکھتا ہے اور ہر دل کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ تیسرا چور فرید، فرید کی اصل پہچان اس کا چہرہ نہیں تھا، وہ بھیس بدلتا تو خود کو بھول جاتا، اسے یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ چوتھا چور یوسف، یوسف بولتا کم تھا مگر جب بولتا تو سامنے والا اپنے ہی لفظوں میں الجھ جاتا۔ سچ اس کے منہ سے نکلتا تو جھوٹ لگتا اور جھوٹ نکلتا تو سچ محسوس ہوتا۔ پانچواں چور عمران، عمران راستوں کا استاد تھا، وہ گلیوں، چھتوں، نالیوں اور محل کے پرانے نقشے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ خوف واپس جانے والے راستے سے لگتا تھا۔ چھٹا چور کامران، کامران کی سب سے بڑی طاقت خاموشی تھی، وہ چلتا تو دیواریں بھی سانس روک لیتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے یہ شور نہیں مچاتا، یہ قسمت بدل دیتا ہے۔ ساتواں چور حارث، حارث سب کا دماغ تھا، وہ نہ سب سے تیز تھا نہ سب سے طاقتور، مگر وہ لوگوں کے خوف پڑھ لیتا تھا، اور خوف سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ایک رات جب شہر پر عجیب سی خاموشی اتر آئی، حارث نے سب کو جمع کیا۔ اس کے سامنے محل کا پرانا نقشہ پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے سب کچھ لوٹا ہے، سوداگر، رئیس، امیر، مگر ایک چیز باقی ہے۔ نعیم نے پوچھا کیا؟ حارث نے نقشے پر انگلی رکھی، بادشاہ کا خزانہ۔ خاموشی چھا گئی، سب جانتے تھے یہ عام چوری نہیں ہوگی، یہ اقتدار کو چھونے جیسا ہوگا۔ سلیم نے دھیمی آواز میں کہا، خزانہ نہیں، یہ بادشاہ کے دل پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ حارث مسکرایا، اور شاید یہی ہمارا آخری کام ہو۔ دوسری طرف محل میں اسی لمحے بادشاہ نور الدین محل کی چھت پر کھڑا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ آنے والا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے رب، اگر آزمائش ہے تو اسے انجام تک پہنچا دے۔ ہوا تیز ہوئی، چراغ لرزنے لگے، اور یوں ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جس میں نہ صرف خزانہ لوٹا جانا تھا بلکہ ضمیر بھی آزمایا جانا تھا۔ رات نے شہر کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وہ رات نہیں تھی جو عام اندھیروں جیسی ہو، یہ اندھیرا سوچتا تھا، سنتا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ سلطنت کے مضافات میں ایک پرانی شکستہ عمارت کے نیچے زمین کے اندر بنا ہوا کمرہ 7 سانسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ موم بتیوں کی روشنی میں دیواروں پر سائے لرز رہے تھے، جیسے دیواریں بھی کسی بڑے گناہ کی گواہ بننے والی ہوں۔ منصوبے کی پہلی پرت میں حارث نے نقشہ دوبارہ زمین پر پھیلایا۔ یہ نقشہ عام نہیں تھا، یہ برسوں پرانے محل کے خفیہ راستوں، بند دروازوں اور ان جگہوں کا تھا جہاں محافظ خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ حارث نے آہستہ کہا، یاد رکھو، ہم محافظوں سے نہیں ٹکرائیں گے، ہم ان کے یقین سے ٹکرائیں گے۔ نعیم نے تالے کی ایک چھوٹی سی چابی انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، تالے صرف لوہے کے نہیں ہوتے، کچھ تالے عادتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ عمران نقشے پر جھکا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ محل کے اندر جانے کے 7 راستے ہیں، مگر باہر آنے کے صرف 3۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں، وہ دیکھ نہیں رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا
उसने सरगोशी की, महल जाग रहा है, सोता हुआ महल सांस नहीं लेता, ये सांस ले रहा है। खामोशी छा गई। हर चोर का अंदरूनी बोझ जाग उठा। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये हर एक के माजी से टकराव था। सलीम को बचपन याद आया जब सिपाहियों ने इसके बाप को गलत वक्त पर गलत सवाल करने पर अंधा कर दिया था। उसने सोचा, आज मैं अंधेरे से बदला लूंगा। नईम के हाथ काम पे। इसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार भूख की वजह से एक तालू तोड़ा था। आज वो तालू इक्तदार का था। फरीद ने आईना निकाला। इसमें उसका चेहरा नहीं था। वो खुद से पूछ रहा था, अगर बादशाह का खजाना लूट लिया तो क्या मैं कोई और बन जाऊंगा या फिर कुछ भी नहीं। यूसुफ खामोश था। इसके अल्फाज अंदर ही अंदर लड़ रहे थे। वो जानता था कि आज अगर उसने जबान खोली तो किसी की जान जा सकती है। इमरान को वापसी का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। ये पहला मौका था जब रास्ते इससे छप रहे थे। कामरान हमेशा खामोश रहता था, मगर इस रात उसके दिल में शोर था। वो जानता था कि सबसे मुश्किल काम बगैर आवाज के लूटना नहीं बल्कि बगैर जमीर के लूटना। और हारिस, वो सबको देख रहा था मगर कोई नहीं जानता था कि वो अपने अंजाम को भी देख चुका था। इसी वक्त महल में कुछ और ही चल रहा था। बादशाह नूरुद्दीन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को खबरदार नहीं किया। उसने सिर्फ पहरेदारों के रास्ते बदल दिए, वक्त बदल दिया और एक ही हुक्म दिया, अगर कोई आए तो उसे रोको मत, देखो, समझो और याद रखो। सिपाही हैरान थे मगर हुक्म बादशाह का था। खजाने के कमरे में एक चिराग रोशन कर दिया गया था। ये चिराग रोशनी के लिए नहीं बल्कि सच के लिए था। बादशाह ने वहां बैठकर खामोशी से कहा, जो लेने आएगा वो खुद बताएगा कि वो क्या है। रात के तीसरे पहर जब हुआ ने रुख बदला, हारिस ने सर हिलाया। कामरान हरकत में आया। एक साया दीवार से अलग हुआ और फिर दीवार बन गया। नईम ने पहला ताला छुआ। ताले ने जैसे सांस रोकी और फिर हार मान ली। सलीम ने आंखें बंद रखें मगर उसके जहन में महल की हर धड़कन गूंज रही थी। और जैसे ही पहला दरवाजा खुला, दौर महल की छत पर बादशाह नूरुद्दीन ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, आ गए हो आखिरकार। महल के अंदर का अंधेरा बाहर के अंधेरे जैसा नहीं था। ये अंधेरा मुहाफिजों, राजों और बरसों के खौफ से भरा हुआ था। हर कदम पर लगता था जैसे जमीन याद रखती हो कि कौन कब यहां से गुजरा। कामरान सबसे आगे था। इसके कदम फर्श को छू नहीं रहे थे बल्कि इसे पढ़ रहे थे। वो जानता था कि कौन सा पत्थर बोलता है और कौन खामोश रहता है। हारिस पीछे था, सबकी सांसों को गिन रहा था। वो जानता था कि अगर सांस बेतरतीब हो गई तो खेल खत्म हो जाएगा। पहला जोन आदतों की दीवार था। ये वो हिस्सा था जहां मुहाफिज हर रात एक ही रफ्तार से चलते थे, एक जैसी थकन, एक जैसी गफलत। नईम ने आहिस्ता कहा, यह जगह तालों की नहीं, आदतों की कैद है। यूसुफ ने पहली बार लब खोले, इंसान अपनी आदतों का कैदी खुद बनता है। कामरान ने इशारा किया। सब रुक गए। एक मुहाफिज करीब था। वो चल रहा था मगर उसकी आंखें जाग रही थीं। ये वो लम्हा था जहां एक आवाज सब कुछ बदल सकती थी। फरीद ने फौरन भेस बदला। एक जख्मी सिपाही बनकर कराहते हुए कहा, पानी। मुहाफिज रुक गया, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर वापस मुड़ गया। खतरा टल गया मगर फरीद के अंदर कुछ टूट गया। वो सरगोशी में बोला, मैंने पहली बार किसी को धोखा दिया जो जाग रहा था। दूसरी दीवार यादों का कमरा था। ये कमरा खाली था मगर हुआ बोझल थी। सलीम अचानक रुक गया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, ये वही जगह है? हारिस ने पूछा। क्या? सलीम की आवाज भरा गई। ये वो कमरा है जहां मेरे बाप को आखिरी बार बांधा गया था। खामोशी चीख बन गई। ये इत्तेफाक नहीं था, ये सल्तनत का हाफिजा था। कामरान ने आहिस्ता कहा, ये महल सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये कहानियों का कब्रिस्तान है। अचानक एक धीमी सी आवाज हुई। नईम के हाथ से एक औजार गिर गया था। आवाज मामूली थी मगर इस जगह मामूली कुछ नहीं होता। दूर कहीं कदमों की चाप सुनाई दी। हारिस ने फौरन फैसला किया, आगे बढ़ो, अब रुकना मौत है। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, रास्ते बदल रहे हैं। ये पहली बार था कि इमरान के रास्ते इससे झूठ बोल रहे थे। खजाने के कमरे में बादशाह नूरुद्दीन ने चिराग की लो सीधी की। एक सिपाही आया, हुजूर, अंदर हरकत है।
बादशाह ने सर हिलाया। मैं जानता हूँ, सिपाही ने पूछा। हुक्म, बादशाह ने कहा। खामोशी। सिपाही हिचकिचाया। और अगर वो कातिल हों? बादशाह ने जवाब दिया, तो वो खुद को मारेंगे, हम नहीं। जैसे जैसे चूर आगे बढ़ते गए, अंदर कुछ भारी होता गया। नईम के हाथ पसीने से भीग गए। वो ताले खोल रहा था मगर अपने दिल के नहीं। फरीद ने सरगोशी की, अगर हम बच गए तो हम क्या रह जाएंगे? यूसुफ ने जवाब नहीं दिया, इसे अल्फाज छोड़ चुके थे। सलीम ने आंखें बंद कर ली। ये अंधेरा मुझे अंधा नहीं कर रहा, ये मुझे दिखा रहा है। आखिरकार वो खजाने के दरवाजे के करीब पहुंच गए। वो दरवाजा बड़ा नहीं था मगर भारी था। ये लोहे का नहीं बल्कि फैसले का दरवाजा था। नईम ने हाथ बढ़ाया मगर रुक गया। बोला, ये ताला मुख्तलिफ है। हारिस ने पूछा, कैसे? नईम ने धीरे से कहा, ये ताला खौफ से नहीं, रजा से बंद है। सब ने एक दूसरे को देखा और इसी लम्हे दरवाजे के अंदर से चिराग की रोशनी बाहर झलक गई। दूर छत पर बादशाह नूरुद्दीन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब फैसला होगा। खजाने का दरवाजा आखिरकार खुल गया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खतरे की घंटी नहीं बजी, कोई मुहाफिज दौड़ता हुआ नहीं आया। बस एक हल्की सी चरचराहट हुई, जैसे कोई पुराना जख्म खुद को खोल रहा हो। दरवाजा खुला और अंदर से रोशनी निकली, ना तेज ना चमकदार बल्कि ठहरी हुई संजीदा रोशनी। सातों चूर एक लम्हे को वहीं रुक गए। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग पीछे मुड़ जाते हैं, मगर अब पीछे सिर्फ अंजाम था। कमरे में दाखिल होते ही सबकी तवक्को टूट गई। ये वो खजाना नहीं था जिसका तसव्वुर उन्होंने बरसों किया था। दीवारों पर सोने की परत नहीं थी, छत से हीरों की बारिश नहीं लटक रही थी। कमरा सादा था, साफ था, तकरीबन खाली था। दरमियान में एक लकड़ी की मेज थी, इस पर एक चिराग था और उसके पीछे बादशाह नूरुद्दीन बैठा था। ना उसके हाथ में तलवार थी, ना ज़िरा, ना ताज, सिर्फ एक आदमी, खामोश और जागता हुआ। फरीद के कदम लड़खड़ा गए। सलीम ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। नईम के हाथ खाली हो गए। इमरान ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की मगर कोई रास्ता नहीं था। कामरान जो कभी नहीं कांपता था, आज इसके अंदर जलजला था। और हारिस मुस्कुराया और बोला, तो आखिरकार हम पहुंच ही गए। बादशाह ने नजरें उठाईं। इन आंखों में गुस्सा नहीं था, फतह नहीं थी, बस गहरी थकन थी। उसने कहा, हाँ, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यूसुफ कदम आगे बढ़ा। वो बोलने वाला था मगर लफ्ज मर गए। बादशाह ने खुद बात शुरू की, तुम में से कोई ये नहीं पूछेगा कि यहाँ मुहाफिज क्यों नहीं आए, कि मैं अकेला क्यों हूँ? खामोशी छा गई। नईम ने हिम्मत करके कहा, ये जाल है। बादशाह ने सर हिलाया, नहीं, ये आईना है। हारिस ने कहा, हम सोना लेने आए हैं, अगर यहाँ नहीं है तो हमें जाने दो। बादशाह ने मेज पर हाथ रखा और कहा, तुम सोना चाहते हो? इसने हाथ हटाया। मेज के नीचे कुछ ना था। फिर इसने कहा, मैं जानता हूँ तुमने क्या खोया है, क्या सहा है और क्यों यहाँ आए हो। सलीम चौंका, अब हमें जानते हैं। बादशाह ने आहिस्ता कहा, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ, यहाँ कोई अंधेरा मुझसे छुपा नहीं। पहली बार हारिस की आवाज टूटी, अगर सब जानते थे तो हमें रोका क्यों नहीं, कत्ल क्यों नहीं करवाया? बादशाह ने चिराग की लो देखते हुए कहा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, मैं भी लेने आया था इख्तियार, बदला, ताकत, और जब ले लिया तो अंदर कुछ मर गया। फरीद ने सरगोशी की, बादशाह और खाली? बादशाह ने कहा, सबसे ज्यादा खाली। फिर बादशाह खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ मगर सजा तुम्हें चूर ही रखेगी, और मैं तुम्हें आजाद भी कर सकता हूँ मगर वो फैसला तुम्हें बदल देगा। नईम के आंसू गिर गए। हमने सारी जिंदगी ताले तोड़े, आज दिल टूट रहा है। यूसुफ ने कहा, अगर हम चूर ना रहे तो क्या बचेंगे? बादशाह ने जवाब दिया, इंसान। बादशाह ने चिराग उठाकर कहा, यह खजाना है, ये चिराग हर रात यहाँ जलता है ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैं क्यों बादशाह हूँ। हारिस की आंखों में नमी आ गई। इसने पूछा, और हम? बादशाह ने कहा, तुम फैसला हो, मेरा भी और अपना भी। खामोशी तवील हो गई। दरवाजा खुला था, कोई रोक नहीं थी मगर कोई जा नहीं रहा था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। ये अंजाम नहीं, हिसाब है। ये चोरी की कहानी नहीं रहती, इंसान बनने की कहानी बन जाती है। 7 चोर और बादशाह। जब इख्तियार छोड़ा गया और इंसान बच गया। खजाने के कमरे में वक्त रुक सा गया था।
चराग की लो कभी तेज होती कभी धीमी, जैसे वो भी 7 दिलों के बोझ बर्दाश्त कर रहा हो। दरवाजा खुला था, रास्ता साफ था, आजादी सामने खड़ी थी, मगर कोई कदम नहीं उठा रहा था। आखिरकार हारिस आगे बढ़ा, वही हारिस जो हमेशा सबसे आगे रहता था, जो खौफ को हथियार बनाता था। आज उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। उसने कहा, अगर हम चले गए तो ये रात हमें छोड़ देगी। बादशाह ने जवाब नहीं दिया। हारिस ने अपनी कमर से वो छोटी सी खंजर निकाली जो उसकी शनाख्त थी और जमीन पर रख दी। ये हथियार नहीं था, ये इसकी जिंदगी का खुलासा था। वो बोला, मैंने सबको रास्ता दिखाया मगर खुद कहीं नहीं गया। ये देखकर नईम घुटनों के बिल बैठ गया। रोते हुए बोला, मैंने ताले तोड़े क्योंकि भूख थी, फिर आदत बन गई। आज मैं पहली बार ताला बंद करना चाहता हूँ। सलीम ने आंखें बंद करके कहा, मैं जुल्म से अंधा हुआ, लालच से चूर नहीं बना, मगर मैंने अंधेरे को घर बना लिया। फरीद ने चेहरा साफ किया और बोला, मैंने इतने भेस बदले के असल चेहरा खो गया। अगर आज भेस उतार दिया तो क्या कोई मुझे पहचानेगा? यूसुफ की आवाज लरज गई, मेरे लफ्जों ने लोगों को बचाया भी और मारा भी। आज मैं खामोश रहना सीखना चाहता हूँ। इमरान ने आहिस्ता कहा, मैं रास्ते जानता हूँ मगर आज पहली बार मंजिल चाहिए। कामरान ने जमीन को देखा। मैं खामोश रहा क्योंकि शोर ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मगर आज खामोशी भी भारी लग रही है। 7 सच कमरे में बखर गए। बादशाह नूरुद्दीन कुछ देर तक सुनता रहा, फिर बोला, तुम सब ने वो कहा जो मैंने बरसों नहीं कहा। वो मेज के पास गया, ताज उठाया और कहा, ये ताज मेरे सर पर नहीं, मेरे खौफ पर रखा था। और उसने ताज मेज पर रख दिया। बाहर सिपाही चौंके मगर अंदर कोई हुक्म नहीं था। बादशाह ने कहा, मैंने सल्तनत को खौफ से संभाला और खुद खाली हो गया। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, न बतौर चूर, न बतौर कैदी, बतौर इंसान। हारिस चौंका, और हमारी सजा? बादशाह ने जवाब दिया, बदल जाना, इससे बड़ी सजा। जाना, इससे बड़ी सजा नहीं और इससे बड़ी बख्शिश नहीं। इसी लम्हे सिपाहियों के कदमों की आवाज आई। एक सिपाही बोला, हुजूर, अवाम को खबर हो गई है, वो इंसाफ चाहते। बादशाह ने हारिस की तरफ देखा। हारिस समझ गया। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं रहूंगा, अगर किसी को कीमत चाहिए तो मैं हूं। ये सब मेरे फैसले थे। बादशाह ने आंखें बंद करके कहा, यही इख्तियार है। दूसरों को बचाने की ताकत। सुबह हुई, महल के दरवाजे खिले, अवाम जमा थे। बादशाह बाहर आया, इसके साथ 6 लोग थे, 7वां अंदर रह गया था। बादशाह ने ऐलान किया, ये लोग आजाद हैं और ये शख्स मेरा मुशीर होगा। हुजूम सन्नाटे में आ गया। बादशाह ने कहा, क्योंकि जो अपनी गलती मान ले वो सजा के काबिल नहीं, जिम्मेदारी के काबिल होता है। रात को बादशाह और हारिस इसी खजाने के कमरे में बैठे थे। चराग जल रहा था। हारिस ने पूछा, अगर हम ना आते? बादशाह ने जवाब दिया, तो मैं कभी जागता नहीं। कहते हैं वो 6 चूर जिंदगी में पहली बार सुकून से सोए, वो 7वां चूर नहीं रहा। और बादशाह कम, इंसान ज्यादा बन गया, क्योंकि असल खजाना न सोना था न ताज, असल खजाना ज़मीर था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चोरी सोने की नहीं होती और हर खजाना हाथ में पकड़ने वाला नहीं होता। 7 चोरों ने सारी जिंदगी दूसरों से छीना, मगर एक रात उन्होंने खुद को पहचान लिया। बादशाह के पास ताकत थी, मगर उसने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि असल ताकत सजा देने में नहीं बल्कि समझ देने में होती है। हमने ये सीखा कि इंसान गलती कर सकता है, मगर बदलना भी इसी के हाथ में है। इख्तियार अगर ज़मीर के बगैर हो तो वो इंसान को खोखला कर देता है, और जो शख्स अपनी गलती मान ले वो मुजरिम नहीं, इंसान बनने के सफर में होता है। असल खजाना ना सोना है ना ताज, बल्कि साफ दिल और जागता हुआ ज़मीर है। अब से एक गुजारिश, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर उसने आपको कुछ लम्हों के लिए रुकने पर मजबूर किया, तो ये कहानी अपना मकसद पूरा कर गई। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी, सबक आमोज और दिल को जगाने वाली कहानियां
اب تک پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے اب تک آئے اور کوئی کہانی اب سے چھوٹ نہ جائے۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور دل تک یہ کہانی پہنچا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں۔